अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, पेश खदमत है हस्बे हाल। मैं हूँ आपका मेज़बान फ़रीद रईस। नाज़रीन, आजकल हर महफिल में सियासत ही गुफ्तगू का मौजू है। आइए देखते हैं रांझे के गांव में क्या हो रहा है। जा मेरे वालों चैलेंज ही एक भी बंदा मैनू कम दा विखा दे अपनी सियासी पार्टी दे सारे खच बंदे तुसी इकट्ठे कीते ने। तू सिर्फ रांझे दा भरा है इसलिए मैं तेरी इज्जत करन दिया, तो इनडायरैक्ट मैनू खच कहन दे है, हालांकि तेरी अपनी पार्टी चवलों दी चंगेर है। ओए एवें मेरे मुंह ना लगी ने ते गल वध जानी हूं। जा काम कर अपना, वो तो मैनू रांझे ने कहा सी जाके चक्कर लानी, नहीं तो तेरे मुंह लगना कौन चाहता है। ते मैं कड़ियां उठ उठ के तेरियां रावां तकन दे हां। उठन जोगा तो तू रहा ही नहीं, खा खा के अपनी निश्त मार लईए। और जा जाके शीशे च अपनी शक्ल वेख, जे शीशे तक पहुंच सकना थे। तेरा कद सिर्फ तेरी सियासी पार्टी नालों उच्चा है। आ गया है मेरे इश्क दे बोल ते मेरी बांसुरी दे सुर। सियासी पार्टियां दियां लड़ाइयां ही किधरे दबे गए ने। ओ भैड़ियो, क्यों सियासत दी वजह तो एक दूजे नाल सिंह फसान डे हो? हालांकि तुहाडा सिंह फसाना बनदा ही नहीं, क्योंकि तुहाडे चों एक बकरा ते दूजा जंगली भैंसा है। और रांझिया तू मैनू आप ही कैसी इधर चक्कर ला ली, ते मैं चक्कर लाने वास्ते आया, मैनू की पता कि तेरा भरा मेरे को खार खांदा है। ओ मेरे यारा, सिर्फ खार नहीं खांदा, इन्हू जो लभे खा जांदा है। मैं ते हैरान होण डे आ, परां पट्ठे क्यों हले तक पए ने। और रांझिया, जे तेरे यार ने हुण मेरे सियासी पार्टी के बारे च कोई गल कीती है ना, तो यह भी मेरे को कुछ ना कुछ खा सकता है। ओ मेरे भरावा, क्यों करना गुफ्तगू दा गुतावा? ओ सियासत दी वजह तो क्यों यारां बेलियां नाल इट कुत्ते वाला वैर पालन ने। ओ वैर जिन्ना मर्जी पाल लो, बस मैनू ये दस दिओ भी तुहाडे दोवां चों इट किहड़ी आ। हैं आओ आ गई जे फसाद पवाण वाली मशीन। ओ कैदो चाचा, एवें ना बन बहुता माचा, ये सारा फसाद तेरा ही पवाया है। ओए ते दुश्मनां दा बंदा है। ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਤੋਪ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਡਰਨ ਦੇ। ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ ਪਰਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਪੱਠੀਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕੀੜਾ ਲੜ ਜਾਵੇ ਤੈਨੂੰ। ਓਏ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਬਹੁਤਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਸੱਪ ਤੇ ਕੈਦ ਨੂੰ ਲੜੇ ਤੇ ਸੱਪ ਆਪ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਰਾਂਝਿਆ ਕਿੱਥੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ? 3 ਦਿਨ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਦਿਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੁਖਣ ਨੂੰ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹੀਰੇ, ਓਏ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਂਝ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਏ। ਇਹ ਵਾਇਰਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਪਾ। ਉਹ ਚੱਲੀਏ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਸੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਦੀ ਰੇੜੀ ਲਾਣਾ ਵਾ, ਕਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਤੇਰੇ ਵਾਲ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਆ। ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ? ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਗੈਰ? ਰਾਂਝਿਆ, ਰਾਂਝਣਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ? ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ? ਉਹ ਤੇਰੀ ਤੇ ਸੱਚੀ ਮੁਹੱਬਤ ਏ, ਤੂੰ ਵੀ ਆਮ ਔਰਤਾਂ ਅੰਦਰ ਬੰਦੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਡਈ ਹੈ। ਬਹਿ ਜਾ ਮੰਜੀ ਤੇ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਮੰਜੀ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕੁੜੀਏ ਕਿਉਂ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਆਉਣੀ ਆ? ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਬੈਂਕ 'ਚ ਲੱਗਾ? ਉਹ ਚਾਚਾ ਕੈਦੋ, ਮੈਂ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਲੱਗਾ। ਐਵੇਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਲੈਪਟਾਪ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਓਏ ਛੱਡ ਲੈਪਟਾਪ ਨੂੰ, ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਕੈਟਰਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ? ਓਏ ਇਹਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕੈਟਰਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕਿਤੇ ਚਾਹ ਦਾ ਖੋਖਾ ਖੋਲਣ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ। ਓਏ ਰਾਂਝਿਆ, ਓਏ ਕੈਟਰਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਚਾਹ ਵਾਲਾ ਖੋਖਾ ਖੋਲ। ਓਏ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰਨੀਆਂ ਛੱਡੇਗਾ ਤੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਤੈਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਔਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਬੈਠਾ ਰਹਿ ਚਾਚਾ, ਐਡਾ ਤੂੰ ਐਲਵਨ ਮਸਕ। ਉਹ ਮੈਂ ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਵਾਹ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ 'ਚ ਚੱਲੇ ਆ ਰਾਂਝਿਆ?
ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਨ ਡਏ ਨੇ, ਓਏ ਗਲਾਸ ਮਾਰਨ ਡਏ ਨੇ, ਓਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿਣ ਡਏ ਨੇ। ਹਾਏ ਉਹ ਚਾਚਾ ਕੈਦੋ ਤੇਰੀ ਵੱਜੀ ਇਹ ਮੱਤ। ਓਏ ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੋ। ਵਾਹ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਆਵਾਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੋ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੋ ਤੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਹੀਰ ਕੋਲੋਂ ਪੱਖੇ ਦੀ ਵਾਹ ਲਵੋ। ਓਏ ਰਾਂਝਿਆ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਦੱਸ ਦੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਆ ਯਾਰਾ, ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ PMP, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਪਾਰਟੀ। और इस पार्टी का मंशूर सिर्फ इको लफ्ज है, अच्छा प्यार। वाह वाह। ਉਹ ਪਰ ਰਾਂਝਿਆ ਉਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖੇਗਾ? ਨੰਢਰ, ਬੇਬਾਕ, ਗਰੀਬੋਂ ਕਾ ਹਮਦਰਦ। ਓਏ ਗੱਲਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਅਮਲ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਵਹਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਵੀਰ ਨਿਕਲੇਗਾ ਸਿਆਸਤ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਐਡਾ ਨਾ ਡਰ ਰਹੇ, ਇਹਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਗਲੀ ਚ ਕੁੱਤਾ ਪਿਆ ਤੇ ਦੌੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬੇਬਾਕੀ ਮੇਰੀ ਆਪੇ ਹੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਾਂਸਰੀ ਦੇ ਸੁਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਰਹਿ ਗਈ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਖਵਾਵਾਂਗਾ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪ ਖਾਵਾਂਗਾ। ਹੈ ਰਾਂਝਣਾ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਚੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਤੇਰਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਛਟਾਲਾ ਚਰਾਂ? ਆ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਉਹ ਪਿਆਰ ਦਿਆ ਦੁਸ਼ਮਣਾ, ਉਹ ਚਾਚਾ ਕੈਦੋ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਲ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪਿਆਰ ਵੰਡ। ਉਹ ਛੱਡ ਦੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰਨੀਆਂ। ਓਏ ਰਾਂਝਿਆ ਇਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਕਰੀ, ਇਹਨੇ ਫੁੱਟ ਪਵਾ ਦੇਣੀ ਏ, ਅਸਲਾਂ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੀ। ਉਹ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਮੇਰੇ ਯਾਰਾ, ਜੇ ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗਾ, ਉਹ ਚਾਚਾ ਕੈਦੋ ਚੁੱਕ ਆਪਣੀ ਹੀਰ ਤੇ ਨਿਕਲ ਇੱਥੋਂ। ਰਾਂਝਿਆ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਸ਼ੁਦੈਣੇ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦੇਣ ਦੇ। मैं तो उन्होंने तड़ी लानी है, तू जान तो इनकार कर दे। ठीक है। और रांझे, ये सियासी बयानात की वजह से ही तो लड़ाइयाँ होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारी सियासी पार्टी भी रूटीन की सियासी जमात होगी। और नहीं फरीद साहब, ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਵੀਂ ਰੀਤ ਤੇ ਨਵਾਂ ਸਟਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ। ਓਏ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਲਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੀਮੇ ਵਾਲੇ ਨਾਨ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਲਸੇ 'ਚ ਚੂਰੀ ਦੀ ਆਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀ। ਵਾਹ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਲਸਿਆਂ 'ਚ ਡੀਜੇ ਵੱਜਦਾ, ਮੇਰੇ ਜਲਸੇ 'ਚ ਬਾਂਸਰੀ ਵੱਜੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਲਸਿਆਂ 'ਚ ਆਵਾਮ ਨੱਚਦੀ ਏ, ਮੇਰੇ ਜਲਸੇ 'ਚ ਲੀਡਰ ਆਪ ਨੱਚੇਗਾ। ਲਓ, ਇਹ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟੈਪ ਕਰਨ ਦੇ, ਇਹਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਚਾਚਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਪੁਰਾਣਾ ਗੁੜ, ਪੁਰਾਣੇ ਚੌਲ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟੈਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਰਾਂਝਿਆ, ਅਸੀਂ ਜੱਟ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਉਹ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਲਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਂਸ ਕਰਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ? ਹਾਏ ਓ ਮੇਰਿਆ ਵੀਰਾ, ਹੋਏ ਅੱਜ ਤੂੰ ਡਾਂਸ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ, ਯਾਦ ਕਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਪੀੜੀ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਤੂੰ 2-2 ਘੰਟੇ ਢੋਲ ਵੱਜਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਧਮਾਲ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਸੰਡਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਖਬਰਦਾਰ ਚਾਚਾ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਜੇਠ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੂੰ ਤੇ। ਓ ਹੀਰੇ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚਾਚਾ ਕੈਦੋ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਏ ਭੁੱਟੋ, ਓਏ ਕਦੀ ਕਦੀ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਉਲਟ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਐਡਾ ਵੀ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੇਰੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆ ਜਾ। ਉਹ ਚਾਚਾ ਕੈਦੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, मगर ऑफर करना मेरा फर्ज है, चूंकि मैं एक सियासी पार्टी बनाई है। रांझा जी, ओ मैडम जरा इधर हो जाए, इधर हो जाए, इधर हो जाए, इधर हो जाए। रांझा जी,
मैंने आपकी सियासी पार्टी के सारे जलसे शेड्यूल कर लिए हैं। कल आपका सबसे पहला जलसा कच्चे के इलाके में है। नी कुड़िए कौन है नी तू रांझे दे जलसे शेड्यूल करन वाली है? मैं मर गई हां, मैं आप ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਰਾਂਗੀ ਜਲਸਿਆਂ ਦੇ। ਉਹ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਘਬਰਾਨੀ ਹੈ ਹੀਰੇ? ਕਰਨ ਦੇ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਲਸਾ। ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਲਸਾ ਹੀ ਆਖਰੀ ਜਲਸਾ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗਾ। ਓਏ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜਲਸੇ 'ਚ ਡਾਕੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਏ ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਖੈਰ ਮੰਗਵੇ ਚਾਚਾ ਕਹਿ ਦੋ ਕਿਹੋ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਏ ਨੀ ਪਤ ਕੁੜੀਏ ਤੂੰ ਦੱਸ ਨੀ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹਦੀ ਰਾਂਝਣਾ ਮੈਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਦੱਸ ਦੇ ਕੁੜੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਸ਼ੁਦੈਣੇ ਐਵੇਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੇਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ? ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ। ਲੋ ਭਾਬੀ ਹੀਰ ਕੁਝ ਕਰ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਸੌਕਣ ਸੈਕਟਰੀ ਹੂ। ਉੱਠ ਜਾਣੀ ਇੱਥੋਂ, ਇੱਥੇ ਰਾਂਝੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਵਾਂਗੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਪ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਂਗਾ। ਇਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਕੁੜੀਏ, ਇੱਥੇ ਬਾਹ ਹੀਰੇ। ਲਓ ਭਾਬੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹੀ ਏ, ਇਹ ਤੇ ਫੇਰ ਰਾਂਝੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਏ। ਹੈ ਉੱਠ ਨਹੀਂ, ਉੱਠ ਇੱਥੋਂ, ਮੈਂ ਰਾਂਝੀ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ। ਉੱਠ ਉੱਠ। ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਕਰਨ ਡਈਆਂ? ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਹਲੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਸਿਆਸਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਂਝਿਆ ਤੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਮੈਨੂੰ ਤੋੜ ਚੜਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੱਥੀ ਲੜਾਈ ਪੈ ਗਈ। ਹੀਰੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਏਂਗੀ? ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰ। ਓਏ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੈਕਟਰੀ ਏ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਹੋਣ ਡਈ? ਰਾਂਝਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੰਜਲੀ ਕਿਵੇਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਏ। ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੰਦੀ ਜਾਗਦੀ ਕੁੜੀ ਏ। तिदो रांझा जिंदाबाद, तिदो रांझा जिंदाबाद, आवे ही आवे, तिदो रांझा आवे ही आवे। ਲੋ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਰਾਂਝੇ ਤੋਂ ਲੜਨ ਡੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਰਾਂਝਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰਨ ਡਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਲੂੰਬੜੀ ਨੇ ਮੁੱਛਾਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਉਹ ਰਾਂਝਿਆ ਤੇਰਾ ਐਡਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਪੋਰਟਰ, ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਰਾਂਝਿਆ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾਰੇ ਨਾ ਲਵਾ, ਪੋਸਟਰ ਲਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬਗੈਰ ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕੰਨ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹੋ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਕੰਨ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਚੜਦੇ ਆ, ਕੰਨ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ। रांझिया तू इन्हां दी बक बक नू छड्ड, मैं हर घर दा बूहा खड़का के दस आया कि नवी पार्टी PMP नू ज्वाइन करो। ਆਹਾ रांझे नू वोट दिओ ते मोहब्बत नू प्रमोट करो। ਵਾਹ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਫੇਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਇਆ ਏ? बस मैं जेड़े घर दा बूहा खड़काया ते उन्हां मैनू निकल के फिर चपेड़ मारी है। वो कहंदे ने असी पहले ही सियासत तो अक्कियां, तू नवी पार्टी लेके आ गए। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਮੌਜ ਲੈਣ ਦਈਏ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਖਾਲਾ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਪੈਲੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਈਏ। नाज़रीन यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक। मगरमच्छ के हवाले से साइंसदान ये कहते हैं कि ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਮਗਰ ਮੱਛ ਕੋ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਛੱਪੜ ਚ ਕਲਾਸ ਲੈਣ ਦੇ, ਬਹਿ ਜਾ। जी मेरे बुजुर्ग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? तबीयत आप सब लोगों की ठीक ठाक है? एकदम फर्स्ट क्लास। वेरी गुड। शुक्र है अल्लाह पाक का। मैं 2 दिन अस्पताल रहा हूँ जी। अरे खैरियत बख्तियार साहब, क्यों? हाँ बस आपको क्या बताएं कि बहुत तकलीफ थी स्टोमिक में। ओहो। पेन नहीं थी जा रही, वो कोई इन्फेक्शन सा हो गया हुआ था, हाँ। मगर अल्लाह के फजल से आप बिल्कुल ठीक ठाक हो। चले अच्छी बात है। नींद वगैरह पूरी किया आपने अपनी? हाँ बहुत आराम किया है जी। फिर आके यार तू डुबन लग पे की हो जाना चाहिए। अमानत साहब आप सुनाइए, आप ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? ਆ ਟੀਚਰ ਬੇਟੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ 6 ਵਾਰ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲਦੀ ਆ। ਉਹ ਮਾਨਸ ਸਾਹਿਬ ਘਬਰਾਇਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਸ ਉਮਰੇ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਕਿਸ ਲਈ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ੇਨ ਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਧਰੇ ਫੌਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉੱਠ ਪਈਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਨ ਚੜ ਗਏ ਆ ਤੇ ਇਹੀ ਹਲੇ ਸੁੱਤੇ ਆ। रमजान साहब आप ठीक हैं? ਮੈਂ ਤੇ ਪੁੱਤ ਇੰਜ ਸੁੱਤਾ ਹੁੰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਘੋੜੇ ਵੇਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੰਨੀ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਣਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਫਿਕਰ।
अच्छा जी, हमारा आज का टॉपिक भी सोने से मुतालिक है, मगर जानवरों के सोने से, यानी मुख्तलिफ जानवर सोते कैसे हैं। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, मैं तो कोआला जो होता है ना जी, बेबी कोआला जी, मैं तो उसको सोया हुआ देखता हूं तो मुझे बड़ा ही प्यार आता है। हाँ, वो छोटा सा रीछ नन्ना मुन्ना हाँ जी। दरख्त के ऊपर बड़े आराम से सोया होता है, उसे डर ही नहीं लगता कि किधरे मैं सुता पिया थल्ले ना डिग पाऊं। तो पोतो नु ये भी फिक्र नहीं मैं सवेरे नौकरी ते जाना। अच्छा, आप ये जान के बहुत हैरान होंगे कि बहुत सारे जानवर आंखें खोल के सोते हैं। आज ही जितनी महंगाई हो गई है कितने अख बंद होंदी जी। मगर बख्तियार साहब, इंसानों के लिए यह शर्त है कि सोने के लिए उन्हें आंखें बंद करना पड़ेंगी, चाहे वो जितनी भी महंगाई हो, जितनी भी परेशानी हो, आंख तो बंद करनी पड़ेगी। और उनको माहौल भी पुरसुकून चाहिए, वरना नींद नहीं आती है इंसान को, वो सो नहीं सकता सही तरीके से। ये ते गल है वो तो। मगर जानवर कुछ ऐसे हैं जो कि आंखें खोल कर सोते हैं, जिनमें जर्राफा, घोड़ा, शुतुरमुर्ग, खरगोश, सांप, मगरमच्छ और उल्लू शामिल हैं। सुना है कि सांप सारी जिंदगी आंख झपकता ही नहीं है। अच्छा जी। जी जी, मैं तो ये सोच के हैरान होता हूँ कि सांप अपनी सपनी को आंख कैसे मारता होगा। अब मेरा ख्याल है वो अपनी आंख के पास हाथ रख के ऐसे ऐसे कर लेता होगा। यार उसके हाथ कहाँ से आ गए? दो हाथ तो चलो दफा करो, मौज करे जी सानू की। ਉਹ ਬਖਤਿਆਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਪ बड़ा ਜ਼ਾਲਮ है, वो अख नहीं मारदा, सिर्फ डंग मारदा। उसके लिए अलहदा से साइंस को रिसर्च करनी पड़ेगी। लेकिन सांप के बारे में वाकई यह कहा जाता है कि वो अपनी जिंदगी में जीते जी कभी भी आंख बंद नहीं करता और खुली आंख ही अपनी नींद को पूरी कर लेता है। अच्छा, कुछ जानवर तो ऐसे हैं जो खड़े खड़े भी सो जाते हैं, जिनमें हाथी, गेंडा, जराफा, घोड़ा, जेबरा, गधा, ये वो जानवर हैं जो खड़े खड़े अपनी नींद पूरी कर लेते हैं। ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਲੋਤੇ ਖਲੋਤੇ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ। क्या फजूल बात कर रहे हो यार, जानवर भी कभी नशा करते हैं? ये नवे नवे क्लास च आए ने तो डरे ने। अच्छा जी, ये जो फ्लेमिंगो है, इसका सोने का अंदाज बहुत क्यूट है। एक तो ये खड़े खड़े सोता है और दूसरा ये कि अपनी ये एक टांग इकट्ठी करके सोता है। अच्छा। और जिस वक्त ये सोता है ये अपनी चोंच को अपने परों में छुपा लेता है। आ ਜਿਹੜੇ अलवी साहब जे ये भी फ्लेमिंगो अंगर ही सौंदे जे। ये भी सोने से पहले अपना मुंह जो है वो तकिए में घुसा देते हैं। मगर अलवी साहब लेट कर सोते हैं और फ्लेमिंगो एक टांग पर खड़ा होकर सोता है। अच्छा जी, जर्राफे के बारे में कहा जाता है कि जर्राफा कई कई हफ्ते बगैर सोए चल सकता है। अच्छा। अजी जिड्डा वो लम्मा है ओदी अक्ल ही गिटियां च। इस बंदे दी अक्ल ही गिटियां च, ओने की वेखना बेचारे ने कि कदों सोना ते कदों नहीं। यार अकल का सोने से क्या ताल्लुक है? ऊपर से उसकी गर्दन इतनी लंबी है, आप देखे ना सारा दिन ऊपर से सबके घरों की वीडियो बनाता रहता है। बख्तियार साहब, आप करीब करीब पहुंच गए हैं। साइंसदान ये कहते हैं कि ऊंची गर्दन होने की वजह से ये जर्राफा दाएं बाएं अपने शिकारियों पर नजर रख सकता है। वही गल निकल आई ना वीडियो बनाने वाली। टॉप शॉट सिर्फ ज़राफा ही बना सकता। अच्छा, मगरमच्छ के हवाले से साइंसदान ये कहते हैं कि मैनू बड़ा डर लगता, मगरमच्छ को मैनू डर लगता। यही केड़ा छप्पड़ च क्लास लैन बह जा बह जा बह जा। यार बड़ी गल है, तू मगरमच्छ दे पीछे बैठा है फिर डरी जान दे। अच्छा, मगरमच्छ के हवाले से साइंसदान ये कहते हैं कि सोते वक्त इसकी आंख पे एक झिल्ली नुमा पर्दा आ जाता है। अच्छा। ये अपनी आंख बंद नहीं करता, बल्कि वो झिल्ली नुमा जो पर्दा होता है वो इसे सोने में मदद देता है। जब ये इस तरह से पड़ा हुआ होता है तो आंखें इसकी खुली होती हैं। देखिया मैं तुहानू कहा सी ना, मगरमच्छ बड़ा धोखेबाज है, फराडिया है। ओ फराडिया की, ओने तेरे प्लाट ते कब्जा कर लिया है। दफा कर सुसानू की। अच्छा जी, अब उल्लू की सुन लें। उल्लू को रात का परिंदा कहा जाता है, जो रात में जागता है और दिन में सोता है। हेलो, आर्टिस्ट ही होया ना।
और ये भी जब सोता है तो इसकी आंखें खुली होती हैं, ये आंख बंद नहीं करता अपनी सोने के दौरान। अच्छा, उल्लू को गौर से देखें तो लगता है उसने ऐनक लगाई हुई है। अच्छा जी, अब कुछ घोड़े की सुन लें। ये भी आंख खोल कर सोता है और जो इसके सोने का तरीक़ाकार है या जो इसका पैटर्न है, यानी 5 से 6 मिनट सोता है फिर उठ जाता है, फिर 5 से 6-7 मिनट सोता है फिर उठ जाता है। और एक जो सेहतमंद घोड़ा होता है, बड़ा बेहतरीन पला पलाया घोड़ा, वो मैक्सिमम यानी तकरीबन कोई 20 मिनट तक लगातार सो सकता है। अच्छा। और मजमूई तौर के ऊपर ये जो इनकी जो थोड़ी थोड़ी देर की नींद होती है, जिसे आप पावर नैप भी कह सकते हैं, अगर आप 24 घंटे में देखा जाए तो ये कोई 3 से 4 घंटे ही सोते हैं ये। बड़ी और मेरा ख्याल है वो यही सोचता रहता है कि किधरे खुरियां लाना लाना आ जाए। क्योंकि घोड़ा जो होता है ना जी, उसकी खुरियां बड़ी अहम होती हैं। अब तो ये YouTube पे, सोशल मीडिया पे ऐसी ऐसी वीडियो देखने को मिलती है कि घोड़े के बेचारे के नाखून जो हैं वो बढ़ जाते हैं बहुत ज्यादा और उससे चला नहीं जाता। इसलिए मेरा ख्याल है ये बेचारा पूरी नींद इसलिए नहीं लेता कि किधरे खुरियां लाने वाला आगे टुर ना जाए। ਜਦੋਂ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਖੁਰੀਆਂ ਲਵਾ ਕੇ ਸੜਕ ਤੇ ਦੌੜਦਾ ਨਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਚੋਂ ਚੰਗਿਆੜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦਾ। वैसे क्या फजूल लॉजिक निकाला है आपने बख्तियार साहब। चलो जी छड़ दियो जनाब, तुसी अपना दस दियो। अच्छा जी, अब चमगादड़ की सुने। ये सबसे मुख्तलिफ सोता है, न ये बैठ के सोता है, न ये खड़ा होके सोता है, और ना ये एक टांग पे सोता है, ये उल्टा लटक के सोता है। मेरे दी सस ने पोते नु तवीज पाते हैं। अच्छा, ये तो सब लोग जानते हैं कि चमगादड़ उल्टा लटक के सोता है, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि चमगादड़ दिन में 20 घंटे से ज्यादा सोता है। ਉਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕੰਮਕਾਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 24 ਘੰਟੇ ਸੁੱਤਾ ਰਵੇ। बहुत अच्छे, यानी आपका मतलब है कि अगर उन्होंने नौकरी दिलवा दी तो फिर 8 घंटे सोएगा। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि चमगादड़ इतनी देर तक सोने के बावजूद और उल्टा लटक कर सोने के बावजूद इनके जो पंजों की गिरफ्त है वो ढीली नहीं पड़ती है और वो मजबूती के साथ लटके रहते हैं। ओह सुभान अल्लाह। अच्छा जी, एक और दिलचस्प बात सुनिए। क्या अल्लाह ताला की शान है, ये जो छिपकली है, बल्कि सारी लिजर्ड जो फैमिली है, ये दीवार पे हो या छत पे हो, इनके पंजों में अल्लाह ताला ने चिपकने की सलाहियत दी होती है। लेकिन जब ये सोते हैं तो ये दीवार पे भी सो जाती हैं, ये छत पे हो तो भी सो जाती हैं, और सोने के दौरान इनके जो पंजों में जो चिपकने की सलाहियत है वो यकसा तौर पे रहती है, चाहे वो जाग रहे हो या वो सो रहे हो। हाय 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 हाय, ये सब अल्लाह ताला की मेहरबानी है जी। अब मैं आप सुता पिया भी खारिज कर लेंदा जी। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਵੀ ਲੇਜ਼ਡ ਫੈਮਿਲੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇਹ ਲੇਜ਼ਰਡ ਫੈਮਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਉਂਝ ਖਾਰਿਸ਼ ਪਈ ਆ। बहुत ही बेवकूफा वाली गल कर। बस बस बस, मेरी तरफ मुतवज्जो हो। जरा परिंदों की बात करते हैं, और परिंदों के सोने के हवाले से कुछ मैं आपको बात बताता हूँ। परिंदों के बारे में कहा जाता है कि वो अपने घोंसले में सोते हैं, लेकिन बहुत सारे परिंदे ऐसे हैं जो दरख्तों की शाखों पर बैठे बैठे सो जाते हैं। वो अपने पंजों को शाख से इस मजबूती के साथ जकड़ लेते हैं कि नींद भी पूरी कर लेते हैं और गिरते भी नहीं है। क्या बात। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और अबाबील तो हैरान कौन है, यानी अबाबील जिसे अल्पाइन स्विफ्ट भी कहा जाता है, ये 6 माह तक मुसलसल उड़ने की सलाहियत रखते हैं, और इनके बारे में कहा जाता है कि ये उड़ते उड़ते सो भी जाते हैं और उड़ते उड़ते अपना शिकार भी कर लेते हैं, उसी में कीड़े मकोड़े खाकर अपना पेट भर लेते हैं। अच्छा जी, अब चींटियों की बात कर लेते हैं। इनमें मुख्तलिफ चींटियां होती हैं। वर्कर एंट्स यानी काम करने वाली चींटियां, मलका एंट यानी कि वो काम बिल्कुल भी नहीं करती है, वो सिर्फ बैठी रहती है। जो वर्कर एंट्स है यानी काम करने वाली चींटियां, उनके बारे में कहा जाता है कि ये पूरे दिन में सिर्फ 4 से 5 घंटे अपनी नींद पूरी करती हैं। अच्छा। और जो नींद पूरी करने का जो दौरानिया है या जो तरीक़ेकार है, वो 1-1 मिनट के 250 से ज़ायद पावर नैप्स लेती हैं, यानी 1 मिनट के लिए सोती हैं फिर जाग जाती हैं, 1 मिनट के लिए सोती हैं फिर जाग जाती हैं, और ऐसा वो 250 मरतबा करती हैं। अच्छा। और जो मलका चींटी है वो काम भी नहीं करती है
और सोती भी सबसे ज्यादा है। ਬਈ ਮਲਕਾ ਜੋ ਹੋਈ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਰੈਸਟ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਆ। अच्छा, एक और इसी हवाले से कुदरत की शान देखिए कि साइंसदानों ने 1967 में एक खास किस्म के मेंढक जिन्हें बुल फ्रॉग मेंढक कहा जाता है, यानी कि बैल मेंढक, इनका जो साइज होता है वो काफी बड़ा होता है। अच्छा। तहकीक में ये बात सामने आई कि ये मेंढक सोते नहीं हैं, और अब तक साइंसदान इस बारे में तहकीक कर रहे हैं कि आखिर बगैर सोए ये मेंढक जिंदा कैसे रह सकते हैं। ਵਾਹ ਜੀ ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਜਾਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤਲਾਕ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗੇ। ओ भाई, अल्लाह मियां की शान है। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਫੀਸ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। अच्छा जी, आप अपना तारुफ तो कराइए, आज आप पहली बार क्लास में आए हैं। ਉਹ ਜੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਟੁੱਟੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਉਧਰੋਂ ਮਫਰੂਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਯਾਰ ਖਲੋ ਵੀ ਜਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਆ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਜੀ ਸ਼ਕੀਲ ਚੌਹਾਨ ਆ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਗਲੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ। चले, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यह लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। पाकिस्तान में हंसी कहीं नजर नहीं आती, माँ सिवाय हंसबे हाल के। इधर भी ये दो बच्चियां हंसती हैं, पता नहीं इन्होंने कादियां खुशियां चढ़ी हैं। नाज़रीन, आइए देखते हैं कि अजीजी के पास आज कौन सी दिलचस्प खबर है। नायरीन, न्यूज जेम्स बॉन्ड 0092 जो खबर लेके आया है ना, उसके मुताबिक आप सुन के हैरान होंगे अल्लाह खैर करे कि मुख्तलिफ ममालिक में अपनी कौमों की हंसी के लिए लोग कितने फिक्रमंद होते हैं। वाह। आप देखते हैं कि पाकिस्तान में हंसी कहीं नजर नहीं आती, माँ सिवाय हंसबे हाल के। इधर भी ये दो बच्चियां हंसती हैं, पता नहीं इन्होंने कादियां खुशियां चढ़ी हैं। हालांकि जितने जितने इनको बिजली के बिल आते हैं, हंसीन से दूर होनी चाहिए। वाह वाह वाह। मगर हंसी बहुत जरूरी है। वाह जी वाह। इसको मद्देनजर रखते हुए देखें जरा जापान ने क्या काम दिखाया है। क्या दिखाया सर? जापान में रोजाना हंसने का कानून नाफिज। वाह। जापान के शहर यामागाता में मुकामी हुकूमत ने एक मुनफरद कानून मंजूर कर लिया, जिस पर लोग हंस नहीं रहे बल्कि इस कानून पर अमल करके हंस रहे हैं। वाह। यानी अखबार के मुताबिक इस कानून के तहत रिहायशियों से कहा गया है कि वो बेहतर जिस्मानी और ज़हनी सेहत को फरोग देने के लिए रोजाना कम से कम एक बार जरूर हंसें। और ये नया कानून गुज़श्ता हफ्ते नाफिज किया गया था, जो कि एक मुकामी यूनिवर्सिटी की तहकीक पर मबनी है, जिसमें बताया गया है कि हंसी अच्छी सेहत को फरोग देती है। वाह। अब आप ये देखें कि इन्होंने किया क्या है। क्या जी? जब इनको इनकी जो अपनी रिसर्च है या तहकीक के मुताबिक इनको पता चल गया कि लोगों को जरूर हंसना चाहिए, वाह। तो इन्होंने वहां पे अपने सारे शहर में सब कंपनियों को, सब अदारों को, सब ऑफिसेज को कहा है कि अपने अपने बंदों को जरूर हंसाएं एक दफा। वाह। अब जो अफसर वहां पे मीटिंग ले रहा होता है, जी। वो बड़े आराम से तकरीर करता करता कि अब हमारी कंपनी ये बनाएगी, अब हमारी कंपनी फलां जगह माल भेजेगी, अब हमारी कंपनी इतने पैसे कमाएगी। हाँ जी। उसके बाद वो करता है अजीज एक दफा और कर दे, एक दफा। लगता है मोटरसाइकिल स्टार्ट कर रहा। नहीं, आप ये देखो ना कि जब बड़ा अफसर ये करेगा हंसी तो निकलेगी। ऐसे ऑन द सीरियस नोट में आपको बताऊं, हम चूंकि अन्नेवाह जिंदगी गुजार रहे हैं, इस तरह अन्नेवाह नहीं बंदा दौड़न दिया, हम उस तरह लगे हुए हैं, वरना ये इंतहाई सीरियस चीज है। मैं अपनी ये जो मेरी अपनी लाइफ है ना जी, जाती, ये जो हम लोग मजा से मुंसलिक हैं या तफरी से मुंसलिक हैं, जी। मजा ही नहीं, तफरी। अच्छा, उस हवाले से मैं भी ये इस बात पे बहुत ज्यादा इत्तफाक करता कि तफरी बड़ी जरूरी है। वाह। अब हंसी क्या है या तफरी क्या है, जी।
हंसी नहीं, तफरीह जरूरी है। ये बड़ी जरूरी है, बिल्कुल। तफरीह जरूरी है। अब तफरीह क्या है? कुछ ऐसी कौमें जहां पे मतलब जैसे जापान है, जी इन्होंने जैसे कहा है ये बड़ी मसरूफ कौम है, ये बड़े मेहनती लोग हैं, हर वक्त ये काम करते हैं। बिल्कुल। तो इन्होंने ये तहकीक अपनी में देखा कि यार लोग सिर्फ काम 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 काम, हंस ही नहीं रहे, तो ये तो सेहत के लिए जरूरी है। उन्होंने वहां पे कानून बना दिए जी हंसो। क्या बात। अब कई ऐसे ममालिक हैं जहां पे बाकायदा खुशियां हैं, फारग टाइम है, एक दूसरे से मिलना गिलना है। या ये कह लें कि हमारे यहाँ भी 50-60 साल पहले देखें कि ये जो थर्ड वर्ल्ड है, यहाँ पे रोने धोने वाली फिल्में भी लोगों को बड़ी पसंद आती थी। जी बिल्कुल सर, क्योंकि उस वक्त यहाँ खुशियां मौजूद थी। ये बात तो लोग इस डायलॉग को भी जुबान ज़दे आम कर देते थे, पारो मेरी मां मर गई। आए आए वो दिलीप कुमार ने एक फिल्म में वो ट्रेजिक सीन किया था, पारो मेरी अजीजी जब आपने थर्ड वर्ल्ड कहा तो हमारी तरफ इशारा किया सब। यार मैं भी उसी में हूँ, मैं केड़ा चीको सलवाकिया में रहता हूँ। आप फिर ऐसे करें ना इशारा, आपने सिर्फ ऐसे किया। चलो जी चलो। ये बात हुई ना, ये बात। तो उस वक्त इस तरह के जो ट्रेजिक सीन होते थे ना, ट्रेजेडी सीन, जिसमें रोना धोना और ये वो भी बड़े पॉपुलर होते थे, बिल्कुल बिल्कुल पसंद किए जाते थे, और लोग ऐसी फिल्में भी बड़ी पसंद करते थे। बिल्कुल। अब नहीं करते, अब लोग ही कहते हैं नहीं हंसाओ बस, मैं नहीं पता, मैं नहीं पता। बल्कि लोग ट्रेजेडी पे हंस रहे होते हैं, मुझे मेरी जिंदगी के 20 साल लौटा दीजिए, लोग हंस रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब हर तरफ तो सारा दिन गम है, दुख है, टेंशन है। बिल्कुल। अब मैं ये पहले भी 1-2 दफा बता चुका हूं, आज मैं फिर बताता हूं आपको कि मेरे नजदीक एक देसी सा मैं शख्स हूं। मेरे नजदीक तफरीह क्या है? हम बचपन में ना जी ऐसे घूमा करते थे, याद है आपको? जी बिल्कुल बिल्कुल। वो चक्कर चढ़ते थे ना, तो पास से कोई सियाना बच्चा कहता था उल्टी तरफ घूमो, फिर उल्टी तरफ एक आध चक्कर ही लेते थे तो ठीक हो जाए। ठीक हो जाते हैं। ये जो उल्टी सिम्मत का चक्कर है ना जी, ये तफरीह है। आप सारा दिन जिस डायरेक्शन में घूम रहे हैं, जी जी, उससे उलट डायरेक्शन पे आपको घूमना जो है वो तफरीह है। क्या बात, क्या बात। अगर आप सारा दिन गम और दुख लेके फिर रहे हैं, तो फिर आपको तफरीह में कुछ देर के लिए लाजमन हंसी चाहिए। इसलिए अब मैं आपको कुछ देर बाद हंसा दिया करूंगा। ये अजीब सा लगेगा, परचून की दुकान पे जा रहे हो, भैया 1 किलो चीनी देना, कैसा लगेगा? अजीब। ठीक है, उसको भी हंसा के आओ, वो भी आखिरकार एक तरह का इंसान होता है। अच्छा, आप ये देखिए, आपको एक और बड़ी अजीब बात सुनाऊं। एक मुल्क है भूटान। भूटान, बिल्कुल। हाँ जी, तुसी तो सिर्फ पुटा खांदे हो ना। अच्छा लीजी नु कहने, एक मुल्क भी है भूटान। अच्छा, ये एक ऐसा मुल्क है जहां पे मिनिस्ट्री ऑफ हैप्पीनेस यानी वजारत बराए खुशी भी मौजूद है। क्या बात। इस वजारत का मकसद मायारे जिंदगी को अवाम की माली और ज़हनी एतबार से जांचना है। हाँ, यहाँ तक कि आबादी की मर्दमशुमारी के सवालनामे में एक कॉलम भी शामिल किया गया है, जिसमें अवाम बता सकते हैं कि वो अपनी जिंदगी से मुतमईन हैं या नहीं। वाह, क्या ना, जो फिक्रमंद लोग हैं, जिनको अपनी अवाम की फिक्र का, अपनी अवाम के दुखों का, गमों का एहसास है, वो इस तरह की हरकतें करते हैं। तो ये नहीं करते कि वोट लेके गायब हो जाते। अच्छा, फिर आप ये सुन के हैरान होंगे कि भूटान में 1999 तक सरकारी तौर पर टीवी और इंटरनेट पे पाबंदी थी। जी हाँ, चूंकि दुनिया से कट कर रहना मुमकिन नहीं अब रहा, इसलिए बादशाह ने ना जी इस कानून को खत्म किया। और यूं मेरा ख्याल है कि भूटान टीवी इस्तेमाल करने वाला दुनिया का सबसे आखिरी मुल्क बना। वो बाकायदा फिक्र करते हैं लोग। बहुत से ऐसे ममालिक हैं जो बड़ी फिक्र करते हैं आवाम की टेंशन की, आवाम के गमों की। आवाम हमारी दुखी तो नहीं है, आवाम हमारी खुश है कि नहीं, उसको तफरीह मिल रही है कि नहीं। बिल्कुल। हमारे यहाँ तो ऐसी बेहिसी है
बिल्कुल। हमने पहले अपनी फिल्म बर्बाद की, कोई पूछने वाला नहीं था। जो गलीज तरीन गाने बना बना के चलाते रहे, बिल्कुल, जो गलीज डायलॉग शूट कर कर के चलाते रहे। मैंने अपनी आंखों में, मतलब मेरी नन्ही मुन्नी अभी एज है, मुझे याद है कि मेरे बचपन में बेइंतहा फैमिलीज आती थी सिनेमा। जी बिल्कुल। और बड़े मोअज़्ज़ज़ लोग, इतना मोअज़्ज़ज़ था सिनेमा कि इसका सबूत मैं ये देता होता हूँ कि हर पाकिस्तान के शहर में शहर के मोअज़्ज़ज़ तरीन बंदों का सिनेमा होता था। बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल। आप देखें गुजरांवाला, लाहौर, फैसलाबाद, हर जगह पे बड़े बड़े जो शहर के लोग होते थे ना जी, वो सिनेमा बनाते थे अपने वहां के शहरियों को तफरीह मुहैया करने के। और बड़ी बाइज्जत फिल्म बनती थी, वकार के साथ, बड़ी आबरू के साथ। वो बर्बाद की। बिल्कुल। उसके बाद हमने थिएटर अपने का सत्यानाश। अब देखे ना कि पूरी दुनिया में तफरीह के हवाले से बेहतरीन, मजाक के हवाले से जो शोबा था वो पाकिस्तान का थिएटर था। जी बिल्कुल। तो हमने वो सारा बर्बाद कर लिया। हमने वो डांस वांस ये वो उसमें, और वल्गर और फोहश जुमले और फोहश हरकत, सारा सत्यानाश कर लिया। तो अब हमारे यहाँ तफरीह क्या है भाई? लोग तो लॉन्ग ड्राइव पे भी निकल जाते हैं तफरीह के लिए। हमारे यहाँ तो वो भी नहीं है। शुक्र है मोटरवे बन गई है, बंदा उसे थोड़ा जा फिल्टर के आवे तो थोड़ा सा सुकून मिल जाता है। वरना तफरीह के लिए तो ईमान से अच्छे भले मेरे जैसे यार मोअज़्ज़ज़ बंदों को अपनी फैमिली में ये करना पड़ता है। और बेगम को बंदा क्या तफरीह दे इसके अलावा? तीन चार हरी बेगम नू तफरीह दियो तो बच्चियां नू कहन लग पैंदी प्यो तुहाडा पागल हो गया। नाज़रीन, यहाँ वक्त में एक छोटी सी ब्रेक का। अच्छा जी, एक स्कूल बस है और उसके पीछे लिखा हुआ है, बार बार पीछे से हारन देकर मुझे तंग मत करें, मैं बच्चों वाली हूं। अच्छा जी, आज सोशल मीडिया से मुंतखब की गई जो मीम्स हैं उसका सेगमेंट है हमारा, लेकिन पहले आपको उसमें एक तस्वीर दिखाता हूं जो कि आपने बड़े गौर से देखनी है और उसके कैप्शन पर भी गौर करना है आपने। ये देखे जी। बहुत अच्छे। यानी एक सीढ़ी लंबी सी ऊपर गई है और अगो बांधे। मेरा ख्याल है कि ये तस्वीर जो है ना, ये उन बेचारे हमारे मेहनत कश लोगों की अक्कासी करती है जिनके पास कोई सिफारिश या रिश्वत नहीं है, और वो बेचारे अपनी मंजिल पाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। क्या बात। ना जरा सीढ़ी ऊपर जा रही है और ऊपर से बंद है और लिखा हुआ है मेरी कामयाबी की सीढ़ी। बच्चा मेहनत कर कर के थक जाता है तो कामयाब फिर भी नहीं होता। नहीं जी। अजीजी, ये सीढ़ी नहीं है, ये लूडो का 99 वाला सांप है। वाह 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 वाह, क्या लूडो के दाने ने अच्छी मिसाल दी। मैंने तो लगता है उतों घर गिरवी देता है इन्होंने। अच्छा यार, ये अगली मीम देखो, ये लें। पता नहीं ये शोहर के कपड़ों में जेबें क्यों होती हैं, शायद खाली रहने के लिए। ये मेरा ख्याल है कि किसी बड़ी हमारी दुखी बहन ने ये मीम बनाई है, जिन्होंने कई दफा खामद के लटके हुए कपड़ों की जेबों में हाथ डाले हैं। अगो मूंगफली दी छिलड़ी हथे आई। अजीजी, आपकी भाभी ने भी शुरू में 2-3 दफा मेरी जेब में हाथ मारे हैं, बस फिर मैंने भी एक दिन छोटा सा सांप जेब में डाल दिया। उस बेचारी को क्या पता था कि उसकी शादी सपेरों की तरफ हो गई हुई। अजीज, ये झूठ बोल रहा है। अच्छा जी, इसके तो जागते हुए जेब में पैसे नहीं होते, तो सोते हुए जेब में कैसे पैसे होते? ऐसे आपको मैं एक बात बताऊं, बहुत सी ऐसी खवातीन हैं जिनके हस्बैंड बाद में ये मानते हैं कि इसने इस तरह पैसे पकड़ पकड़ के इधर से उधर से मेरी जेब से खर्चे में से निकाल के तो प्लाट खरीद लिया था जिस पे आज हम मकान बना के बैठे हुए। वाह खुदा, मेरे 2 दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने ये मुझे बताया हुआ है। वाह जी वाह। कि ये तुम्हारी भाभी ने एक दिन कहा कि भाई प्लाट लिया मैं। तो ये मेरा ख्याल है ये कोई इतनी कोई, मैं तो इसे बुरी चीज नहीं समझता, मैं इसको मैया अंदाज में ही लेता हूँ। हाँ, बंदा एहतियात कर ले ना, 100 तो बड़ा नोट जेब च रखे।
ਅਜ਼ੀਜ਼ੀ 100 ਦਾ ਪਲਾਟ ਕੀ ਹੁਣ ਤੇ 100 ਦੇ ਦਹੀਂ ਭੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕਿਸਮਤ। चलो यार अगली मीम देख लो। ये ले जी। अच्छा जी, एक स्कूल बस है और उसके पीछे लिखा हुआ है, बार बार पीछे से हारन देकर मुझे तंग मत करें, मैं बच्चों वाली हूं। आए, कैसा कोई समझदार ये ड्राइवर होगा या बस का मालिक होगा जिसने बच्चों वाली बस के ऊपर लिखा है। स्कूल बस है तो भाई बच्चों वाली बस ही है ना। बड़ी अच्छी मीम बनाई है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी मीम है, बहुत अच्छी मीम है। वैसे तो हारन बजाना हमारा कौमी मशगला है। इस तरह होता है ना कौमी जानवर या कौमी खेल, कौमी मशगला हमारा हारन बजाना है। बिल्कुल सही बात। तो इसी तरह ही को बंदा शर्मिंदा कर सकता है हारन बजाने वालों को, वरना तो नहीं होते। बिल्कुल सही बात है। अजीजी भाईजान, मैंने आज तक अपनी गाड़ी का हारन नहीं बजाया, खराब हुआ है। वाह 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 वाह, यानी फिर तुम्हारी तो कोई अच्छाई ना हुई। अजीजी वैसे मजाक ना समझना, मेरी ड्राइविंग में बहुत कम है हारन। अच्छा, हारन बहुत कम है। मैंने एक दोस्त को कहा तुम गाड़ी चलाओ, उसने इतने हारन दिए, इतने हारन दिए, इतने हारन बजाए कि वो सड़क पे जो कौवे बैठे हुए थे तो उनको भी हारन दे रहा। तो तुमने कहना था ना ये मेरा इस्तकबाल करते हैं, इनको ना हारन दिया करो। मैंने कहा भी यार तुम पास जाओगे तो ये उड़ जाएंगे, हारन क्यों दे रहे हो? हाँ नहीं, वैसे वाकई हारन बजाना तो हमारा ना जी आदत इतनी बुरी बन गई हुई है, वैसे ही मजे के लिए भी बजाते रहते। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अच्छा जी, एक और मीम देखिए। दिखाएं। ये लें जी। ये सानेहा मेरे वहमो गुमान में भी न था, इंटरनेट सामने वाले मकान में भी न था। वाह 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 वाह, क्या दुखी होया जी। देखो किसी ऐसी जगह ते बेचारा लै बैठे मकान जिथे इंटरनेट नहीं है नेड़े तरेड़े किधरे भी। इंज दे जिहड़े हुंदे ने ना जी इंटरनेट चोर, दूजे को किसी बहाने पासवर्ड पूछ के उन्होंने दी कंध नाल बह के अपना काम करते रहते। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। देखना आहिस्ता आहिस्ता ये रिवाज भी पड़ जाने हैं कि दीवारों पे लिखा हुआ नजर आएगा, ये देखो गधा इंटरनेट चला रहा है। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। अपने मेज़बान फरीद रईस को इजाज़त दीजिए। आइंदा हफ्ते आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।